وہ شرابی ہے یا نشہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، روتے ہیں، پچھتاوا کرتے ہیں، لیکن پھر وہ انہی کاموں کی طرف لوٹ جاتے ہیں. یہ منفی توبہ ہے کہ اسی کاموں میں دوبارہ لوٹ جاتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں لعنت، بدکاریاں، زناکاریاں، ہماری برکات رکی ہوئی ہے، کیونکہ ہم منفی طور پر توبہ کرتے ہیں. ہم عارضی طور پر کہتے ہیں کہ اے خدا ہمیں جو ہے وہ معاف کر، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس وجہ سے ہمارے گھروں میں سے کیا نہیں جاتی؟ پریشانیاں، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، اس وجہ سے. اور خدا جو ہے وہ کل کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم منفی توبہ کریں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم مثبت توبہ کریں. مثبت توبہ کیا ہے؟ مثبت توبہ یہ ہے کہ اپنی نیت کو تبدیل کرنا ہے. آپ نے منفی توبہ میں صرف پچھتانا تھا، آپ نے پچھتائے، روئے اپنے گناہوں پر، لیکن پھر سے انہی کاموں میں لوٹ گئے. خداوند یسوع مسیح کا قول ہے کہ جب ایک بدروح کسی گھر سے نکلتی ہے تو جب اسے باہر جگہ نہیں ملتی تو وہ 7 اور کو لے آتی ہے. یہ جو تمثیل ہے خداوند یسوع مسیح نے سمجھانے کا مطلب یہ ہے، جب ہم منفی طور پر توبہ کرتے ہیں تو ہمارے گھر میں صرف ایک بدروح ہوتی ہے. بدروح کا ادھر مفہوم جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ گھر میں صرف ایک بچہ یا ایک جوان یا ایک بوڑھا رشوت لیتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے. وہ باہر سے کیا کرتی؟ جب اسے باہر کہیں جگہ نہیں ملتی، ٹھیک ہے، جب ہم اچھے طریقے کے ساتھ منصف طور پر توبہ نہیں کرتے تو وہ چیز جو ہے باہر سے جھوٹ کی وجہ سے ہمارے گھر میں رشوت، زناکاریاں، بدیاں، یہ ساری بدروہیں ہمارے گھر میں کنورٹ ہو جاتی ہیں ایک بدروح کی وجہ سے، جب ہم اسے اپنے اندر سے نکالتے نہیں ہیں مثبت طور. اور مثبت قربانی کے مثبت توبہ کے لیے جو ہمیں نئے عہد نامے میں سے متی کی انجیل سے ایک دلیل ملتی ہے وہ یہ ہے، متی کی انجیل اس کا 21 باب اور اس کی 28 سے 32 آیت تک ہے. وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے تو لڑکے نے پاکستان میں کام کرنے سے انکار کیا لیکن بعد میں پچھتایا. پہلا کیا تھا؟ وہ لڑکا جو تھا اسے اوپر کی گئی کہ پاکستان باغ تھا وہاں کام کر، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں کر سکتا. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ وہ پچھتایا، یار اچھی سیلری مل رہی تھی، اچھا مجھے روزگار مل رہا تھا، میں اب پچھتا رہا ہوں. وہ اس پر پچھتایا. اس سے کیا ہوا؟ اس کی نیت بدل گئی. اس کی کیا ہوئی؟ نیت بدل گئی. اور پھر وہ پاکستان میں جا کر کیا کرنے لگا؟ کام کرنے لگا کہ میرے ماں باپ کو سہارا ملے گا، مجھے سہارا ملے گا. اس نے اپنی نیت کو تبدیل کیا، منفی طور پر نہیں، مثبت طور پر. وہ اپنے اندر پچھتایا، رویا. اس وجہ سے اس نے کیا کیا کہ دوبارہ جا کر وہ وہاں کام کرنے لگا جہاں سے اس نے انکار کیا. تو آج ہمیں توبہ کی کیوں ضرورت ہے؟ یہ چیزیں ہم کتاب مقدس میں سے اگر دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں ذکر ملتا ہے کہ سب کو توبہ کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کی نظر میں سب گناہ گار ہیں. آج ہم سب کو کس توبہ کی ضرورت ہے؟ منفی یا مثبت؟ مثبت توبہ کی ضرورت ہے. مثبت توبہ کریں گے تب ہی ہمارے گھروں میں بحالی آئے گی. مثبت توبہ کریں گے تب ہی ہمارے بچے وفادار ہوں گے. مثبت توبہ کریں گے، دعا میں جھکیں گے، اپنی بدکاریوں کو خدا کے سامنے انڈیریں گے اور ان روشوں سے باز آئیں گے تو ہمارے گھروں میں بحالی آئے گی. ہمارے گھروں میں جو رکاوٹیں ڈلی ہوئی ہیں، جو شیطان ہمارے ہر ٹائم دروازے پر بیٹھا رہتا ہے، وہ بھاگ جائے گا. ہم ہمیشہ شیطان کا اچھے طریقے کے ساتھ مقابلہ کر سکیں گے. کیسے؟ اگر مثبت طور پر توبہ کریں گے تو ڈنڈا لے کر ہم اس کے پیچھے جائیں گے اور اس کو بھگا دیں گے. ڈنڈا کیا؟ خدا کا کلام، کیونکہ کلام میں لکھا ہے شیطان کا مقابلہ کرو گے تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. شیطان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ ہمیں اپنی زندگی میں مثبت توبہ کر کے، صرف یہ نہیں کہ عارضی طور پر یا منفی طور پر پچھتا کے رو کے پھر انہی کاموں میں الجھ جانا ہے. نہیں، اگر برکت چاہتے ہیں، بحالی چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں اس طرح کی زندگی ہو ہماری کہ لوگ دیکھ کر ہمیں کہیں کہ ہاں یہ مسیحی ہے، یا ہاں یہ ایرک کا بیٹا ہے، یا ہاں یہ ایرک کی بیٹی ہے، تو آپ کو مثبت توبہ کرنے کی ضرورت ہے. تب لوگ کہیں گے کہ ہاں یہ ایرک کا بیٹا ہے جس نے توبہ کی ہے. اب آپ کے چال چلن بدل جائے گا، آپ کا چال چلن دنیا سے الگ ہو جائے گا. آپ ان محفلوں میں نہیں جائیں گے، آپ وہ کام نہیں کریں گے جو جن سے خدا نفرت کرتا ہے. یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ
मुस्बत तौबा करेंगे। उस लड़के की तरह जो ताकसान बाग में पहले नहीं गया, बाद में पछताया, रोया, उसकी क्या हुई, नीयत बदल गई। नीयत का बदलना तौबा है। इसके बाद सबसे जरूरी बात जो है वो ये है कि तौबा माफ़ी से पहले है। माफ़ी के लिए हम जानते हैं कि खुदा ने अपना पाक लहू सलीब पर बहाया है। तौबा एक शर्त है जो हमें करनी ही करनी है। अगर आप चाहते हैं कि वो पाक लहू आपके घरों पर लग जाए, अगर आप चाहते हैं कि वो पाक लहू जो है वो आपके घरों से कभी जाए ना, आपको मुस्बत तौबा करने की ज़रूरत है, ना कि मनफी। तो तौबा के लिए बाइबल मुकद्दस में 100 से ज़्यादा बार जो है वो मौज़ूआत पर जिक्र हुआ है, और जिसमें से ज़्यादा जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का मौजू है। जो यूहन्ना क्या था, यूहन्ना आया ही तौबा के लिए था, और मुनादी क्या करता था कि उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदा के बियाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो। हमें जिक्र मिलता है, अगर हम अहद अतीक को देखें तो नबियों की ज़िंदगी से हमें ये जिक्र मिलता है कि आप दाऊद की ज़िंदगी को देखें। एक हमारे सामने एक मिसाल है, ये नबियों की ज़िंदगी से हम सबक सीखते हैं। किताब मुकद्दस में अगर इन नबियों का जिक्र है तो एक सबक देने के लिए है कि उन नबियों की ज़िंदगियों में क्या क्या हुआ था। दाऊद नबी ने क्या किया, अपने सिपाही की बीवी के साथ ज़नाकारी की, 7 दिन रोजे में ठहरा। क्या हुआ, वो मुसीबत टली नहीं टली, उसका बेटा क्या हुआ, मर गया, क्योंकि खुदा का हुक्म था कि ये बदकारी के बाइस पैदा हुआ। जब उसने सच्चे दिल से तौबा की, खुदा ने उसको दोबारा से बहाल किया। पहले वो मनफी जो है वो तौबा करता था, रोता था कि ये बच जाए, वो बच्चे के लिए दुआ कर रहा था। लेकिन बाद में जब उसने अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए दुआ की, तो खुदा ने उसे दोबारा से वहीं पर बहाल किया। तो ये चीज़ें हमें सिखाती हैं कि हमें मनफी नहीं बल्कि मुस्बत तौबा की ज़रूरत है, क्योंकि मनफी तौबा आर्जी है, आज की, कल की, परसों की। एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है, एक औरत ने कहा कि मैं कल तौबा कर लूँगी, उसने कहा कल गुजर गया, उसने कहा परसों कर लूँगी, मैं कौन सी मरने वाली। 3-4 दिन गुजर गए, क्या हुआ कि एक्सीडेंट में उसका डेथ हो गई उसकी। तो क्या हुआ, तौबा जो है वो ईमान की कुंजी है। अगर वो उसी दिन तौबा कर लेती, अपने गुनाहों पर पछताती, रोती, अपनी नीयत को तब्दील करती, तो वो कभी मरती ना। उसके दिल से मरने का डर ख़त्म हुआ था, इस वजह से कि वो कहती थी कि मेरी ज़िंदगी शायद बहुत लंबी है। लेकिन ज़िंदगियों का इख्तियार जो है वो खुदा के पास है। वो चाहता है कि आप तौबा करें, और तौबा करने से जो चीज़ें खुदा हमारी ज़िंदगी में दाखिल करता है वो कुछ इस तरह से है कि तौबा हमारे अंदर किस तरह से पैदा होती है। तौबा हमारे अंदर किस तरह से पैदा होती है। अमाल की किताब 11 बाब 18 में कुछ इस तरह से मरकूम है, तौबा क्या है, खुदा की बख्शिश है। और वो कहने लगे कि फिर तूने, बेशक खुदा ने गैर कौमों को भी ज़िंदगी के लिए तौबा की तौफीक दी है। तौफीक यानी कि हर एक को ये खुदा ने अपने अंडर किया हुआ है। खुदा ने अपने आप जो है वो अपने वसीला के, अपने पाक लहू के वसीला से खुदा ने हमें ये तौफीक बख्शिया कि हम तौबा करें। तो क्यों ना हम मनफी की बजाय मुस्बत तौबा करें। हम तौबा, अपने गुनाहों पर पछताते हैं, हम रोते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो मनफी की बजाय मुस्बत तौबा हम क्यों ना कर लें, हमारा रुझान खुदावंद की तरफ क्यों ना प्रॉपर तौर पर हो जाए। तो तौबा के फ़वाइद जो हैं वो हमारी ज़िंदगियों में हम देखेंगे। किताब मुकद्दस में जो चंद हवालात को तलावत करूँगा कि तौबा करने से क्या होता है, खुदा कितना खुश होता है। इसके लिए लूका की अंजील 15 बाब उसकी 7 से 10 आयत में कुछ इस तरह से मरकूम है, मैं तुमसे सच कहता हूँ इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनाह के बाइस खुदा के फरिश्तों के सामने उसकी क्या होती है, खुशी होती है। जब कोई एक बंदा ज़मीन पर तौबा करता है, मनफी तौर पर नहीं, मुस्बत तौर पर। मनफी अगर तौबा करेंगे तो आसमान पर क्या, ज़मीन पर भी उसका अजर नहीं मिलेगा। हम ये तो कहना शुरू कर देंगे कि खुदा ने हमारी सुन ली है या वगैरह वगैरह, लेकिन खुदा नहीं सुनता। वजह क्या है, हमने अपने रवैयों को कलाम के मुताबिक डाला ही नहीं है, हमने अपने रवैयों को कलाम के मुताबिक लिया ही नहीं है, हमने अपनी पुरानी रविशों को छोड़ा ही नहीं है।
तो खुदा हमारी किस तरह से सुन लेगा, फरिश्ते किस तरह से खुशी करेंगे, आसमान पर किस तरह से खुशी होगी। तो ये मुस्बत तौबा के फ़वाइद जो है वो हमें किताब मुक़द्दस से मिल रहे हैं। दूसरी दलील ये है, यसाया के सहीफ़ा में कुछ इस तरह से मरकूम है, शरीर अपनी राह को तर्क करे और बदकार अपने ख्यालों को, वो खुदावंद की तरफ फिरे और उस पर रहम करेगा और वो हमारे खुदा की तरफ से, क्योंकि वो कसरत से माफ़ करेगा, क्योंकि वो कसरत से माफ़ करेगा। शरीर वो जो खुदा के हुक्मों को नहीं मानता, शरीर वो जो अपने माँ बाप के हुक्मों को नहीं मानता, अगर वो मुस्बत तौर पर तौबा करेगा, तौबा दो किस्म की आपको बताया, तो क्या है, मुस्बत और एक मनफी है। मनफी में भी यही चीज़ है, हमारे सामने अगर कोई इकरार करता है मैं ये नहीं काम करूँगा, तो वो फिर उन्हीं कामों में लौट जाता है। तो क्या होता है, वही बात जो खुदा यीशु मसीह ने कही कि अगर कोई एक बदरूह घर से निकलती है, बाहर उसे जगह नहीं मिलती, तो वो साथ और ले जाती है। वो बदरूहें क्या है, आपको मैंने बताया, नशा, रिश्वत, सूद, झूठ बोलना, धोखेबाजी, दूसरों को धोखा देना, ये सारी वो बदरूहें हैं जो हमारे घरों में दोबारा कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, अगर हम उसी बदरूह को, एक बदरूह को हम मुस्बत तौर पर निकाल ही दें कि हम झूठ बोलते हैं, हम उसे तर्क कर दें, हम अपने माँ बाप के फरमाबरदार नहीं, हम फरमाबरदार बन जाएं, तो क्या होगा, हमारे घरों में क्या होगी, बरकत आएगी, बहाली आएगी। और खरूज 20 बाब में से हमने क्या पढ़ा था, तू अपने माँ और बाप की इज्जत करना, क्या होगा, तेरी उम्र दराज होगी। दराज होने का मतलब ये है कि अगर इधर, ये आपको मैं कलाम में से एक वाक़या बताने लगा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि खुदा की मर्जी है। खुदा ने अपने बंदों की ज़िंदगियों में, अपनी बंदों की ज़बान पर बहुत ज़्यादा असर रखा है। अभी थोड़ी देर पहले हम ये दुआ जिक्र कर रहे थे कुर्बानी के बारे में। जब इसहाक को अब्राहम लेकर जा रहा है, इसहाक ने क्या सवाल किया, अब्बा हुजूर लकड़ियाँ भी हैं, हर चीज़ मुहैया है, ज़िबा करने के लिए मेंढा कहाँ पे? तो अब्राहम ने क्या कहा, वो भी खुदा मुहैया करेगा। ईमानदार की ज़िंदगी में खुदा इस तरह से काम करता है, जब वो सच्चे दिल से तौबा करते हैं और उनकी ज़बान में इतनी तसीर है कि खुदा उनके कहे को टाल नहीं सकता। और खुदा ने क्या किया, उसी वक्त रोक दे अपना हाथ, और खुदा ने उसी जगह मेंढा मुहैया किया। और पुराने अहदनामे में से मुझे नबी का नाम जिक्र नहीं है, मालूम नहीं है नबी का नाम, उसने क्या किया था कि खुदा के फरिश्ता ने उसे बताया कि तेरी अब उम्र जो है वो कम होने वाली है, तू मरने वाला है। उसने दुआ की, ये ज़बान की मैं बात बता रहा हूँ कि जो खुदा के साथ चलता है, सच्चे दिल से मुस्बत तौर पर तौबा करता है, खुदा अपने बंदों से कैसे कैसे काम लेता है। वो उस नबी ने क्या किया कि दुआ की और कहा कि मैं अभी मरना नहीं चाहता। और किताब मुक़द्दस में मरफ़ूम है कि उस नबी की उम्र 15 साल बढ़ गई थी, 15 साल बढ़ गई थी। अगर आप सच्चे दिल के साथ खुदा के साथ चलते हैं, तौबा करते हैं, मुस्बत तौर पर तौबा करते हैं, तो खुदा आपकी ज़िंदगियों में भी ऐसे काम करेगा। और खुदा करने की कुदरत रखता है, क्योंकि खुदा का फरमान है, रब्बना मौला यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। और वो काम यही है, जब हम सच्चे दिल से तौबा करेंगे और खुदा की बादशाहत में शरीक होने के वारिस हम ठहराए जाएंगे, तब ही हम शाही ख़ानदान के फ़िरक़ा के अफराद कहलाएंगे, क्योंकि हम शाही ख़ानदान के फ़िरक़ा के अफराद हैं। हम कोई लली पंजी नहीं हैं, हम शाही ख़ानदान के फ़िरक़ा के अफराद हैं। और वो कैसे उसमें शरीक होंगे, जब हम मुस्बत तौर पर तौबा करेंगे, जब हम खुदा को सच्चे दिल से कबूल करेंगे और उस डाकू की तरह इकरार करेंगे कि ऐ यसू, ऐ कर तौबा बंदे आ छेती कर, ए बेड़ा हाथ ना उड़ाए। कर तौबा बंदे आ